Hello students, today we are going to discuss about the practical number 4, that is identify different components of household refrigerator. Domestic household घरचा जो रेफ्रिजरेटर असतो ओके त्याचे डिफरंट कंपोनेंट्स आपण आज बघणार आहोत. Now in last practical we have discussed about the different components of vapor compression refrigeration system. Okay, the major components of vapor compression refrigeration system, you can say mechanical components, that is compressor, condenser, expansion device and evaporator. Okay, now this is a schematic diagram of vapor compression refrigeration system or domestic refrigerator, we can say. Now generally this domestic refrigerator, that is divided into three groups of components. First one, that is mechanical components. Mechanical components are compressor, condenser, expansion device and evaporator. Okay, then the electrical circuit or electrical components, in which there will be a starter, then relay, capacitor, okay, and electrical connections. And third one, that is cabinet component, where the freezer or the compartment is there for keeping the materials which is to be cooled. That is divided into three compartments. Now if we consider the mechanical components, we know the compressor, that is hermetically sealed compressor is used in the refrigerator, domestic refrigerator. Then condenser जो आहे, that is air cooled condenser. Okay, नॅचरल ड्राफ्ट एअर कूल्ड कंडेन्सर. आपल्याला रेफ्रिजरेटरच्या बॅक साइडला ज्या ठिकाणी पाईप आहे आणि किंवा ट्यूब आहे, आणि ट्यूबला काय केलेले आहेत, वायर्स कनेक्ट केलेले आहेत. ट्यूब्स आहेत बघा, अशा ट्यूब्स आहेत. ट्यूब मधून काय जाणार आहे, रेफ्रिजरंट जाणार आहे. अँड द वायर्स आर अटॅच्ड विथ द ट्यूब्स. व्हाय वायर्स आर अटॅच्ड टू द ट्यूब्स? that will work as a supporting member, one thing. And second thing is that the heat transfer rate that will get increased, because the refrigerant having high temperature in the tubes, okay, that will transfer heat to the atmosphere. Now if wires are attached over here to the condenser, the surface area comes in contact with the air, that will get increased, and that's why the heat transfer rate will get increased. That is condenser. Then expansion device, that is capillary tube is used as an expansion device in the domestic refrigerator. And then evaporator. In last semester we have seen the evaporator, that is the freezer section of the domestic refrigerator. Now these are some mechanical components. The electrical components and cabinet components we will see in actual location of the refrigerator. ठीक है, तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स कौन से थे? सबसे पहला था ये आपका कॉम्प्रेसर. कॉम्प्रेसर के बाद कौन सा था अपना, यहां से फिर ये डिस्चार्ज लाइन, और उसके बाद फिर कंडेंसर. ये कंडेंसर के बाद में यहाँ पे आ रहा था फिल्टर और ड्रायर. फिर उसके बाद आपने इवोपरेटर सेक्शन देखा था, और इवोपरेटर सेक्शन के बाद में डिस्चार्ज सक्शन लाइन भी देखी थी. ठीक है, ये सारा का सारा हमने पहले प्रैक्टिकल में कवर कर लिया था. अब हम इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं. तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सबसे पहला ये आता है, इसको बोला जाता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब OLP. ये है आपका OLP. इसका काम क्या होता है, ये लगा होता है कॉम्प्रेसर में. अगर मान लो आपके कॉम्प्रेसर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई या फिर गैस की वजह से कुछ सप्लाई एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब आपके कॉम्प्रेसर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड नहीं जाने देगा. ये एज अ फ्यूज आपके कॉम्प्रेसर में काम करता है. ठीक है, तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके फ्रिज में. दूसरा जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल, ये है आपका रिले. ठीक है, ये है आपका रिले. रिले का काम क्या होता है,
आपका जो कंप्रेसर है उसमें दो तरीके की वाइंडिंग्स होती है। सबसे पहली वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरा जो वाइंडिंग होता है वो है रनिंग वाइंडिंग। तो ये रिले क्या करेगा, एक साथ जैसे ही आपने फ्रिज चालू किया, एक साथ ये दोनों भी वाइंडिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों भी शुरू हो गई। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड बोलो, जब आपका कंप्रेसर पूरी अच्छी तरीके से चालू हो गया तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। कैसे, इसने क्या किया, पहले उसको धक्का दे दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को क्या कर दिया, धक्का दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया। और जब अच्छी तरीके से अपना कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई काम नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा और अपना कंप्रेसर रनिंग वाइंडिंग पे शुरू रहेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। और ये है आपका तीसरा कंपोनेंट, ये है तीसरा कंपोनेंट, इसका नाम है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करता है आपके कंप्रेसर को, आपकी रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, इसका बस यही काम है। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। ये है आपका थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि आपके कंप्रेसर को कितना समय तक रन करना है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे, आपने ये स्विच तो देखा ही होगा आपके फ्रिज में, आप इसको 1 पे 2 पे ऐसा कुछ तो भी सेट करते हो, है ना, इसको आप सेट करते हो। तो ये क्या करता है, ये सीधा सा सीधा जुड़ा होता है आपके कंप्रेसर से। वो क्या करेगा, अगर आपने इसको 1 पे या 2 पे सेट कर लिया मान लो, तो क्या होगा, वो उतने समय के लिए आपके कंप्रेसर को शुरू रखेगा। उससे क्या होगा, आपके फ्रिज के अंदर कुछ जितनी भी उसको कूलिंग चाहिए होगी उतनी वो कूलिंग बना लेगा, और जैसे ही उसकी कूलिंग हो गई तो आपके कंप्रेसर को रन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या होगा, फिर अपने आप कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और मान लो जैसे ही आपका जो रेफ्रिजरेशन सेक्शन है वो अगर हीटअप होना शुरू हो गया, और आपको कंप्रेसर को फिर से चालू करना है, तो वो फिर से इस स्विच के वजह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम है आपके थर्मोस्टेट स्विच का। और लास्ट आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है डोर स्विच। इसको डोर स्विच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डोर से ऑपरेट होता है, आपका डोर बंद होने पे और चालू होने पे। जैसे ही आपने डोर को ओपन किया तो आपके फ्रिज में एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब क्या होगा, जलेगा, शुरू होगा। ठीक है, और अगर आप मान लो आपका बल्ब शुरू ही रहता है तो क्या होगा, उसमें हीटिंग पैदा होगी, मतलब कूलिंग बराबर होंगी क्या, नहीं होंगी। इसीलिए जैसे ही आपने डोर बंद किया तो ये अपने आप जो स्विच है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसका ये काम है। और जो हमारा तीसरा सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन हमारा कौन सा है, हमारा रेफ्रिजरेशन का कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम के प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया आपका फ्रीजर, ये है आपका फ्रीजर, ये फ्रिज का डोर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आपकी पूरी बॉडी। ये है गास्केट। गास्केट का काम क्या है कि लीक प्रूफ बनाना। ठीक है, लीकेज नहीं होना चाहिए, ये सब इसका काम करता है। उसके बाद में क्या है आपके, ये है स्लीव्स, ये स्लीव्स है आपके। ठीक है, यहाँ पर ये सेक्शन बना हुआ है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। ओके, और उसके बाद में ये है आपकी वेजिटेबल ट्रे, ये है। और ये है आपका चिलर। चिलर का काम क्या होता है कि फ्रिज से जो भी डिफ्रोस्टेड होता है, जो आपका आइस होता है, जो डिफ्रोस्ट होने के बाद में जो भी पानी जमा होता है वो आपके चिलर में जमा होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस।